के लिए ग्रोथ क्या मायने रखता है? ग्रोथ फॉर बाई सेल्फ, फैमिली बिजनेस में ग्रोथ लाना चाहिए, टीम वर्क होता है ग्रोथ। जैसे मैं अभी स्कूल में कर रही हूँ हेल्प, तो वो एक ग्रोथ हो गया। इसके साथ ही आप सोशल वर्क में स्कूल के हाँ कर रहे हैं, हाँ इस बारे में बताइए। लाइक जैसे हमारे फैक्ट्री के बाजू में एक स्कूल है, तो वन डे हम लोग ने वाया में एक प्रोजेक्ट किया था, नक्षत्र विंग। उसमें क्या क्या कर रहे हो अभी इस प्रोजेक्ट में? अभी तो वी आर बिल्डिंग 2 क्लासरूम्स फॉर देम, टॉयलेट जो जो उनको चाहिए, तो वो सब हम हेल्प कर रहे हैं। उनका भविष्य अच्छा होना चाहिए। सर क्या यंगनेस में शीशा वर्टिकल हाँ, भी चला रहे हो, हाँ। तो इसके बारे में कुछ बताइए। We are like 5-6 girls. They are also entrepreneurs. They are also leading ladies. And we decided this bring a new vertical for women especially. तो हमने ये vertical establish किया। वेलकम टू चेजिंग ग्रोथ पॉडकास्ट भाभी। Thank you, Mahesh, for inviting me. And this is my first time ever done this interview. So yeah, I'm excited. सो भाभी आपका स्कूल लाइफ कैसा था? मैं स्कूल लाइफ एक्चुअली मैंने बहुत स्कूल चेंज किया एंड ऑल, बट देन आई जॉइन भोजवानी जो पूना में है। बट दैट स्कूल रियली चेंज्ड माई लाइफ, द वे टू थिंक, प्रैक्टिकल नॉलेज जो हमको मिला स्कूल में। एंड दे taught us like simple example I'll give you. They give how to do elections, simple practical knowledge. They tell you how to do elections and all. They taught us about mental health. They taught about how to bring every student को ना support करना, या you know कि they never let down anybody. All students were equal for them. So the school which I went was very good, and I really progressed after that, and I really enjoyed the school life. सो आप बैक बेंचर थी या फर्स्ट बेंचर थी? I was an average student, to say. I tried my best, like to do a lot of activities in school, and I tried my best to learn everything. And what about your college life? College, I did my commerce 11th 12th in Dastur, and it was a good experience. I was average, but hard work is the key, and you have to be dedicated to your education and all. And yeah, that was like 12th was little difficult for me, but then I knew that okay, I can do it. That willpower is always there with me. और 12 के बाद आपने क्या परस्यू किया? 12th के बाद it was like मेरे को BCom as usual everybody wants to do, and but मैंने सोचा कि क्यों like my father once just saw a newspaper कि FAD International Design School, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं ट्राई करे कि something new. So once I joined FAD International करके पुणे में है, college है, but so then I dropped the BCom, and then my family, my dad all supported me to go ahead of what I wish to do. मेरी इच्छा थी करने की, वो मेरे डैड एंड पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। So, वो कोर्स में आपने करने के बाद अगला करियर स्टेज क्या रहा? I did my fashion art design. I was a professional fine artist. I have done a lot of exhibitions in Pune. My main focus was abstract paintings, canvases, play with colors. So that whole journey. Then I went to London to for a internship course for again for art design, to learn more about how they are in other colleges in London. वो लोग कितना इंस्पायर करते हैं लोगों को, एंड द वे दे एक्सपैंड आर्ट in London, and I was very amazed to see the way they are so creative. And we did a lot of backstage work. Like I went to London Fashion Week, so I helped people there backstage. कैसे देखते हैं कि कैसे कोई मॉडल कैसे तैयार होते हैं, कैसे उनसे बात इंटरव्यू लेना, वो सब सिखाया हमको। आपका जो एक्सपीरियंस था पूरा जो इंटर्नशिप का इन लंदन, सो वो आपके करियर में अभी तक आपको कैसे हेल्प कर रहा है? बहुत चीज़ों में, लाइक मेरे को कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ, to face the world, to take decisions, to be creative in the same way, how to tackle पहले गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, बट अभी
उधर जाके यू सी लाइक everybody gets same kind of opportunity and all. It was a very good growth for me personally. आप जब लंदन से फिर से पुणे आए तो आपका पुणे में आपने क्या जर्नी स्टार्ट किया? फिर मैं पुणे आई, देन मैंने डिजिटल मार्केटिंग किया, वो भी एक्सटर्नल किया लाइक फॉर 2-3 months. देन उसके बाद मैं गई गुड शेपर्ड फिनिशिंग स्कूल. इट्स ओनली फॉर गर्ल्स. उधर जाके मेरे बहुत चीज़ें चेंज हुई, लाइक माई कॉन्फिडेंट लेवल, माई to speak like in public and all, how to engage with people. Then udhar jaake there were many courses you could learn, cooking, riding horses, which every boy can do. In that they taught us that girls also can do, like cooking, then fashion designing. Udhar sab cheez tha, and that point everything changed. So वो कोर्स होने के बाद आपने फिर आगे करियर में क्या किया? देन मैंने सोचा कि यही, जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग किया है, लाइक आर्ट में भी हूँ, तो मैंने सोचा कि यही क्यों नहीं, लाइक आई गो इनटू माय फैमिली बिजनेस वेयर वी हैव like to make them understand about creativity, marketing कैसा होता है, to maybe basically to upgrade my dad's business और brand कैसे अपग्रेड करना है वैसा. सो मोस्टली क्या होता है ना कि जो सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो फैमिली बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते ज्वाइन करने में. तो आपने जो इंटरेस्ट लिया उसके पीछे आपका मोटो क्या था या क्या इंस्पायर किया आपको? माय मोटो वाज आई ऑलवेज वांटेड टू बी there for my dad, like a pillar, because हमारा like we have a small family, so why not to go and back and help the company which is growing for such a long time. Why not to help and grow the company? And my inspiration is always my grandfather and my dad. I've seen them like grow, do so much hard work, and the way they are, that their willpower is so good and so strong. So because of that and their support, basically I thought why not to give a contribution to their effort and all. आपने जो आपके डैड की जो लेगेसी थी उसे कंटिन्यू करने का हाँ डिसाइड किया, राइट? हाँ. सो ऑर्बिट को टीम के साथ ही आप सोशल वर्क भी करती हो अलग. हाँ. इसका उसके बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए. जैसे मैं आई एम नाउ इन यंग इंडियंस, it's a Young Indians Pune chapter. I'm there for last 5 years now, and I had came to know about Young Indians through one of my cousins. So they enrolled me in the group, and after that, like many things changed more. Like I grew up more. Like I became more confident going in a conference to learn about business, because I'm from a design background and I'm from an art field. So it's really difficult to catch up with the other leaders who are there in the forum in YI. So slowly I got the confidence, the connect, how to connect with people, how to get business. इसके साथ ही आप सोशल वर्क में एक स्कूल के प्रोजेक्ट कर रहे हो. हाँ, उस बारे में बताइए. लाइक जैसे हमारे फैक्ट्री के बाजू में एक स्कूल है, तो सो वन डे हम लोग ने YI में एक प्रोजेक्ट किया था, नक्षत्र विन. तो मेरे कोई कलीग ने बोला था फैक्ट्री में कि देयर इज़ एक स्कूल है जो मेरे ग्रैंडफादर पहले से उनको बहुत हेल्प करते थे. तो उन्होंने बोला कि उनको क्यों नहीं इनवाइट कर सकते, कि वो लोग बच्चों लोगों को भी अच्छा लगेगा कि यू कैन उनको कैसे लाइक प्लांट कैसे ग्रो करना है उनके हाथों से. वी थॉट विल डू प्लांटेशन ड्राइव. तो देन धीरे धीरे देन आई वेंट टू द स्कूल, उनके बारे में पता चला उनको क्या प्रॉब्लम क्या करना है. तो वन डे लाइक मी आई वाज डिसाइडिंग कि एक क्लासरूम क्यों नहीं बना देते दो, मतलब फॉर द चिल्ड्रन. एंड चिल्ड्रन इज़ लाइक द नेक्स्ट जेन फॉर आवर कंट्री, एंड वो लोग है तो वी ऑल आर देयर, लाइक उनका भविष्य अच्छा होना चाहिए. सो आई थॉट व्हाई नॉट टू कंट्रीब्यूट and work for them. उसमें आप क्या क्या कर रहे हो अभी उस प्रोजेक्ट्स में? अभी तो we are building 2 classrooms for them, toilets like proper जो उनको चाहिए, तो वो सब हम हेल्प कर रहे हैं. और उनको भी बहुत बेनिफिशियल मिल रहा है. जैसे उनका भी फॉर एग्जांपल अभी एडमिशन्स बढ़े हैं जस्ट बिकॉज वो 2 क्लासरूम्स के वजह से. तो कि you get lot of good blessings from the children, the family.
तो अच्छा लगता है ऐसा कुछ करना, एंड आई लाइक टू डू लॉट ऑफ हेल्प इन लाइक दिस फील्ड्स. एंड आई एम ऑल्सो थोड़ा लाइक लिटिल स्पिरिचुअल पर्सन, तो मुझे भी थोड़ा मेडिटेशन करती हूँ एंड ऑल, तो एक पाथ मिलता है कि कुछ अच्छा करे अपने सोसाइटी के लिए. आप अभी ऑर्बिट में क्रिएटिव हेड हो, उसके साथ ही आप यंग इंडियंस में पोजीशन पे हो, और उसके साथ ही ये सारे सोशल वर्क, तो आपका टाइम और एनर्जी कैसे मैनेज करते हैं? Obviously you have to plan your whole day, what you want to do. Dedication is there, hard work. I mean, you have to have the willpower, you have to have that passion to do such things. And obviously the basic support which comes is from your family. If that support is there, then you can reach any heights and you can help the society, which is really needed. And I always feel that I am still a learner. I've not really reached that stage कि I can leadership अभी थोड़ा बाकी है. I need to learn more. People should avoid saying that. Right. I feel people should come more forward, help, and contribute to the society. That's very important. तो हमारा पॉडकास्ट का मोटो भी वही है कि ये किसी रेवेन्यू के लिए हम नहीं कर रहे, कि जो ग्रोथ कम्युनिटी है, जो एम्बिशियस है, उन्हें राइट पाथ नहीं मिलता है, उन्हें किसी के कनेक्शन नहीं मिलते कि जिनसे वो लर्न कर पाए, कुछ सीख पाए. इसलिए हमने ये शो शुरू किया कि आप जैसे आप वर्किंग वुमन हो, उसके साथ ही आप बिजनेस ऑपरेट कर रही हो, सोशल वर्क कर रही हो, फैमिली मैनेज कर रही हो, ये सब करके आप आपके लाइफ में ग्रो कर रही हो, तो ये बहुत लेडीज के लिए इंस्पिरेशन है. ये तो है ऑब्वियसली, बिकॉज नाउअडेज टू कम एनी गर्ल टू कम अप, it takes a lot of courage, lot of sacrifice, and but now India is becoming a superpower because of women also. Yes. Women are the main key role nowadays. वो लोग तो कोई भी लेडी कुछ भी कर सकती है. बहुत मेरे कनेक्शन की कंपनीज है कॉन्टेक्ट्स में, तो वो क्या करते हैं ना, ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं वुमेन्स एम्प्लॉय को, क्योंकि वो डेडिकेटेड रहती है और काम सही से करती है. वहाँ पे मेन का रेशो थोड़ा सा कम है, क्वालिटी काम डिलीवर करने, ये चीजें होती है. Obviously women always, उनको जो काम देते हैं वो डेडिकेशन से दे डू. आई एम रियली हैप्पी दैट कि मैं कुछ सोसाइटी के लिए आई एम डूइंग, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कीप ऑन डूइंग इट, whatever hard work I can do more for the society. साथ ही आप यंग इंडियंस में शीशा इन वर्टिकल भी चला रहे हो, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमें. हमने we are like 5-6 girls who they are also entrepreneurs, they are also leading ladies, and we decided this bring a new vertical for women especially. तो हमने ये vertical establish किया, and then now we are doing a Women's Day celebration on 7th of March, and we are getting amazing speakers. One is the doctor, acupuncture doctor, and there are 2 rural ladies who are coming. So I wish that you all come and register. Yes, so सारे वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स को ये कहना चाहता हूँ, एंटरप्रेन्योर्स एंड वर्किंग वुमेन्स, आप ये रजिस्ट्रेशन कीजिए, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. सो भाभी जी, आपने ऑर्बिट ये जो आपकी फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया, तो आपके फर्स्ट मंथ कैसा रहा? फर्स्ट मंथ तो मैंने बहुत लर्न किया. मैं गई फैक्ट्री, थोड़ा प्रोसेस देखा कि कैसे कोटिंग होता है, कैसे पेंट होता है, सिंपल चीज़ें कि लाइक उधर जो काम करते हैं उनके साथ थोड़ा सा आई टू गाइडेंस की, ठीक है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है, कैसे बात करते हैं लोगों से. प्रोसेस देखा पूरे. मेरे जो कोटिंग बिजनेस है, पेंट का बिजनेस में, मैं फैक्ट्री जाती थी, देखती थी कि कैसे मैन्युफैक्चर होता है, कैसे मीटिंग्स में जाना, लोगों से मिलना, जैसे ऑडिट हो रहा है तो क्या है ऑडिट, वो सब सीखा मैंने. मैनेजमेंट थोड़ा सीखा कि क्लीन एनवायरनमेंट कैसे क्लीन रखना चाहिए अपने खुद के फैक्ट्री का. तो देन छोटे मोटे वी डिड वर्कशॉप्स कि हाउ टू लाइक अर्थ डे था तो कैसे एनवायरनमेंट को ठीक रखना चाहिए. लाइक अभी स्वच्छ भारत है तो हाउ टू कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन. थोड़ा ये सब चीज़ें मैंने सीखा. बहुत टाइम क्या होता है ना, कोई फैमिली बिजनेस जब ज्वाइन करता है वो सीधा जाके जॉइंट मैनेजर डायरेक्टर की चेयर पे बैठ जाता है और वहाँ से ऑपरेट करने लगता है. बट जो आपने आपके बिजनेस में किया कि ग्राउंड से स्टार्ट किया, कि जूनियर रोल से लेके क्या सीखना है, प्रोडक्ट समझ लिया, प्रोसेसेस क्या है, डिपार्टमेंट क्या है,
दैट इज द राइट स्ट्रेटेजी। भाभी जब वुमन एंटरप्रेन्योर हो तो बाकी जो वर्किंग वुमन है या एंटरप्रेन्योर जो है या बनना चाहती है उनको क्या आप सजेशन दोगी? सक्सेसफुल बनने के लिए यू हैव टू बी डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यू हैव टू हैव द पैशन to learn, to grow. And third thing is your willpower. You need your willpower to be strong, and you should know that you can do it. And I mean, sometimes खुद की भी सुनना चाहिए कभी. And your support system, like your family and all, वो बहुत मायने रखता है. And your values, respect, and how much you can contribute to the society. आगे बढ़ के काम कर और initiative करो. Don't be scared of taking your own step. तो तुम्हें जो करना है you can fly, you can do it. आप ही इनिशिएट नहीं करोगे तो आगे जाके कोई आपको पुश नहीं करने वाले एक लिमिट के बाद. And you have to have that confidence कि मैं कर सकती हूँ. And कोई भी कर सकता है, anyone. जो सारे वुमन एंटरप्रेन्योर वर्किंग वुमन है उनके लिए बहुत इंस्पायरिंग रहा होगा ये पॉडकास्ट. और लर्निंग भी जो इम्पोर्टेंट थी कि आपने जो डिसीजन लिए लाइफ में, आपकी जो लर्निंग रही स्कूल्स की, कॉलेजेस की, उसके बाद आपने लंदन जाके जो सीखा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है. जैसे आई थिंक आप जैसे इंडिया में और पुणे में थी तो एक फैमिली सपोर्ट था आपके पीछे, वहाँ जाके आपने खुद ही कुछ चीजें सॉल्व की होगी फर्स्ट टाइम. या बहुत चैलेंजेस तो होते ही है. आई मीन विदाउट चैलेंजेस एंड स्ट्रगल यू कांट बी व्हाट यू आर, व्हाट आई एम टुडे. It's all because hard work, थोड़ा struggle. I mean, everybody makes mistakes. तो वो सब up and downs तो होते ही है journey में. But then how you sustain and how you be, there कि नहीं मैं कर सकती हूँ. Not to give up basically. और भाभी जी आपके लिए ग्रोथ क्या मायने रखता है आपके लिए? Growth obviously growth for myself कि खुद को grow करो every day. Second grow अपना बिजनेस जो हम लोग कर लाइक फैमिली बिजनेस में ग्रोथ लाना चाहिए. लाइक टीम वर्क होता है. ग्रोथ मीन्स भी इन जैसे मैं अभी स्कूल में कर रही हूँ हेल्प, तो वो एक ग्रोथ हो गया लाइक किड्स, लाइक फ्यूचर के लिए कि वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं, वो एक ग्रोथ. सेकेंड सोसाइटी में ग्रोथ. तो ग्रोथ इज़ अ बिग वर्ड एंड मेरे लिए वही है. So, खुद के साथ आपके टीम्स और आपके जो जितनी सोसाइटी को आप हेल्प कर सकते हैं उन सबकी ग्रोथ हो. So, वही हमारा पॉडकास्ट का कंसेप्ट है, चेजिंग ग्रोथ. So thank you for coming this podcast, Bhavi. Thank you, Mahesh, for inviting me. Thank you so much. To all women entrepreneurs and all women in the world, happy Women's Day. Happy Women's Day to all the amazing ladies out there, and just grow and go and conquer the world. Thank you. Thank you.